Very good morning 8th class. It's cool morning day. कल बहुत अच्छी रेन्स हुई हमारे यहाँ, तो मौसम बिल्कुल सही है पढ़ाई करने के लिए, राइट? So let's start our lesson for the day. We were doing soil resource. Yesterday's lesson we have understood how soil is formed, the various factors which contribute in the formation of soil. Then we have read about degradation of soil, which factors lead to degradation of soil. ये कल हमने समझा था. The topic of today's lesson is soil conservation. What is the meaning of conservation, children? Conservation means बचा के रखना, ठीक? So soil conservation कैसे रखना है पहले तो हम समझेंगे, क्यों ज़रूरी है, why we need to conserve soil, and then we will understand what are the various ways through which soil can be conserved, right? So let's begin our lesson. Soil conservation. Soil is our prime natural and economic resource because we derive everything that we need in our life from soil. जो कुछ भी चैप्टर के बिगनिंग में ही मैंने आपको बताया था, हमारी 90 से 95% नीड्स लैंड से पूरी होती हैं, और इसी लैंड रिसोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है बच्चों सॉइल. तो हमारी काफ़ी नीड्स फ्रॉम अ फूड टू क्लोथ, बहुत सारी नीड्स दे आर फुलफिल्ड थ्रू सॉइल. इट इज़ द सॉइल दैट प्रोवाइड्स फूड फॉर बोथ मैन एंड एनिमल्स, बिकॉज हमारे क्रॉप्स किस पर ग्रो होते हैं, सॉइल में ही तो ग्रो होते हैं. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अफेक्ट करती है. सो वी गेट फूड फ्रॉम सॉइल. Then the soil gives us cereals like wheat, rice, millets. They all are grown in soil. It also provides us oilseeds, pulses, beverages. Beverages का मतलब होता है drinks, जिसे हम पीते हैं. Beverages like tea and coffee, etc. It gives us both primary and secondary food products. तो दोनों चीज़ें होती है. Primary products उन्हें कहते हैं बच्चों which we used directly after getting from soil, और सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट्स जिन्हें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद उनको कंज्यूम करते हैं. सो प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स अंडरलाइन कर लो, कौन कौन से हैं प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स? सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. विच आर द प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स? सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल. इन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. वी ऑल्सो गेट मीट, एग्स, हनी, वूल, लैक. कितनी सारी चीज़ें हैं. अगेन 90 से 95% नीड्स आर फुलफिल्ड बाय लैंड और लैंड सॉइल इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल. These are obtained from the kettle. Meat, eggs we get from the kettle. Insects, honey हमें insects से मिलता है. That depend on soil for their food. तो ये एक तरह से secondary food products हो गए. So ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? Indirectly soil से. पहले animals consume कर रहे हैं, food they are getting from soil, and then they are giving us all these things. Then we make clothes. जितना भी कॉटन है, हाँ, जूट है, all these fibers they are grown on soil. We make clothes from the fibers given by the soil. So in short, it is the basic resource जो हमारी basic needs को fulfill कर रहा है. It is the basic resource for the development of a country's wealth. तो ये एक basic resource है जो हमें food भी दे रही है और clothes भी. तो देखो जो इतना बेसिक रिसोर्स है, इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, सो वी नीड टू कंजर्व दैम. इसके बिना तो ना फूड होगा ना क्लोथ्स होंगे, सोचो. सो इसके डिग्रेडेशन को हमें रोकना है, और वो रोकना ही क्या कहलाता है बच्चों? सॉइल कंजर्वेशन. सो वी सी दैट सॉइल गिव्स अस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट्स. दोनों मिल गए ना हमें, प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स भी मिल गए और सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट्स भी. We make clothes from the fibers grown in soil. It supplies us material for building houses. Soil से ही मिलता है हमें. हाँ, रेत जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक घर नहीं बनता है, सीमेंट में रेत मिलाना पड़ता है.
So building houses, it gives us minerals for the development of industries. बहुत सारे minerals हैं, आप आगे भी हम जब ये chapters continue करेंगे आगे, there we'll see all the minerals that we get from soil. In short, soil is the most important natural and basic resource. इसको underline कर लो. Soil is the most important natural and basic resource for the development and degradation of a country's wealth. So अगर हमें country को develop करना है तो उसे बहुत ज़रूरी है हमें soil को preserve करना और हमारी country की wealth को बचा के रखना. But now what is happening, children? A lot of soil erosion is taking place, है ना. बहुत सारी, कल हमने agents of soil erosion पढ़े थे, wind and water. So soil erosion has made millions of hectares of land unproductive. अब ये soil erosion ने क्या कर दिया है, whether it's through water or whether it's through wind, हमारा millions and millions of hectares of land unproductive हो गया है, infertile हो गया है in several areas of the world. So it's not only in India but in other parts of the world, everywhere. It is vital, it is important that great care is taken to conserve, protect, renew and maintain soil fertility. So need of the time is that we need to protect our soil. अगर हम soil को नहीं बचाएंगे तो हमारा food कहाँ grow होगा, फाइबर नहीं मिलेगा तो क्लोथ्स कैसे बनेंगे. सो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे रिन्यू किया जाए और उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाए. All possible measures must be taken to fight the evils of soil impoverishment and soil erosion. Which all factors are responsible for infertility of soil? Soil की quality खराब होना, soil की fertility कम होना, जो भी factors responsible हैं, उन सब factors को हमें ख़त्म करना है, उन सब बुराइयों को ख़त्म करना है. The governments of most of the countries have taken remedial measures. कर रही हैं, governments remedies कर रही हैं. How to improve soil fertility? They are taking steps to prevent soil erosion. पूरी कोशिश की जा रही है. Some of the following measures are as follows. Now one by one, children, we are going to read what all steps are being taken by the governments all over the world. It's not only that in India, but all over the world, what all measures are being taken to conserve soil. Soil को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं all over the world. Now one by one we are going to read them. The first step, the most important step, contour plowing. कॉन्टूर कहते हैं बच्चों, आप कभी हिल्स पर गए हो, है ना, माउंटेन्स पर या हिल्स पर गए हो, पूरा स्लोप नहीं होता है, थोड़ा सा चढ़ते हैं फिर थोड़ा चढ़ते हैं तो क्या एक हाइट का एक लेवल आता जाता है ना. तो वो जो सेम आउटलाइन टाइप जो होती है ना उसे कहते हैं कॉन्टूर. सेम लेवल पर, सेम हाइट पर जो प्लेसेस होती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्टूर. तो खेती कभी आपने देखा है फार्मर को प्लाउइंग करते हुए, कैसे वो अपने खेत को प्लाव करता है, तो वो हल चलाता है, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ फिर ऐसे घूमकर. तो अगर हमें फार्मिंग करनी है माउंटेन्स पर या हिल्स पर, तो अगर हम स्लोप में ऊपर से नीचे तक अगर हम वो बनाएंगे, प्लाइंग जिसमें की जाती है, जिसमें सीड सो की जाती हैं, तो अगर क्यारी जिसको कहते हैं ऑफकोर्स, वो अगर हम प्लेन्स पर तो समतल बन जाएगी, लेकिन माउंटेन पर तो कैसे बनेगी, ऊपर से नीचे. लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे वो क्यारियाँ बनाएंगे तो क्या होगा, जब पानी आएगा, हमने चलो उसमें सीड्स भी सो कर दिए, लेकिन जब वाटर आएगा, रेन्स आएंगी तो क्या होगा, स्लोप पे सारा पानी बह जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर क्रॉपिंग करने का. सो व्हाट इज़ बीइंग डन स्पेशली ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, कॉन्टूर प्लाइंग की जाती है. जो सेम हाइट पर फ्लैट लैंड्स है ना, उनमें क्यारियाँ बनाई जाती है, ऊपर से नीचे नहीं, फ्लैट,
है ना, साइड बाय साइड, ताकि पानी ऊपर से एकदम से बह ना जाए, वो वहाँ पर रुक जाए। एक स्टेप टाइप आप कह सकते हो, है ना। टेरेस गार्डन देखा है ना अपना, स्टेप्स में बना हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये तो टेरेसिंग अलग तरह से की जा रही है स्टेप्स में। कुछ बहुत जो नेचुरल स्टेप्स हैं ये तो हमने क्रिएट किया है, लेकिन जो नेचुरल स्टेप्स होती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्टूर प्लॉइंग। बाय दिस मेथड द फील्ड्स आर प्लाउड, हेरोड एंड सोन अलोंग द नेचुरल कैंटोर्स। जो नेचुरल स्टेप्स हैं ना हिल्स पर, उन पर फार्मिंग की जा रही है, इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन द स्लोप, क्योंकि पानी बह जाएगा तो अप एंड डाउन तो नहीं क्यारी बनाई जा सकती, तो वो लेवल पर बनाई जाती हैं। दिस प्रिवेंट्स द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द हिल, इट स्टैंड्स इन द लेवल, है ना, वो जो लेवल पर क्यारी रोज बनाए गए हैं, एंड सोक्स इनटू द ग्राउंड, और वो अंदर जमीन में चला जाता है, पानी बहता नहीं है क्योंकि वो फ्लैट है। सो द प्लांट्स रिसीव मोर वाटर, दिस इज सूटेबल फॉर अफॉरेस्टेशन। कॉन्टूर प्लॉइंग ज़्यादातर किसकी की जाती है, फॉरेस्ट एरियाज, फॉरेस्ट ग्रो किए जाते हैं, एंड ग्रासलैंड डेवलपमेंट वर्क, जहाँ हमें ग्रासेस लगानी है, ग्रासलैंड डेवलप करने। अब ग्रासलैंड भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रास किसका फूड है, हमारी कैटल का, तो ग्रासलैंड्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जहाँ पर या तो फॉरेस्ट डेवलप करे जा रहे हैं या फिर ग्रासलैंड्स डेवलप हो रहे हैं, ये माउंटेन्स पर, हिल्स पे कॉन्टूर प्लॉइंग की जाती है ना। आपके प्रीवियस पेज पर देखो 147 पर लास्ट में एक पिक दे रखी है, दैट इज कॉन्टूर प्लॉइंग। नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज टेरेसिंग। बिल्कुल अपने टेरेस गार्डन जैसा स्टेप्स डेवलप किए गए, ठीक है, और उन स्टेप्स पर फिर फार्मिंग हो रही है, दैट इज टेरेसिंग। बाय दिस मेथड अ सीरीज ऑफ वाइड स्टेप्स आर मेड अलोंग द स्लोप। बिल्कुल दिमाग में है ना, ध्यान कर लो, टेरेस गार्डन फॉलोइंग द कॉन्टूर्स। बस देखो, और नीचे आपके पिक भी दे रखी है, देखो यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की स्टेप्स डेवलप है और वहाँ पर फार्मिंग हो रही है। दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन इन एशियन कंट्रीज इन रीजन्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। और आप बता सकते हो हमारे इंडिया में ज़्यादातर ये टेरेस पर कौन सी फार्मिंग होती है, टी फार्मिंग, है ना, टी कल्टिवेशन होता है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में राइस कल्टिवेशन भी ऐसे किया जाता है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड तरीका क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। द थर्ड वे टू कंजर्व सॉइल इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन दिस मेथड cover crops such as grasses and small grains are planted alternatively with cultivated crops. Have you seen some fields? आपने खेत देखे हैं ना, लाइन से क्रॉप्स उगते हैं और उनके बीच में मेड़ पे जगह खाली होती है, फिर लाइन से क्रॉप है, फिर बीच में जगह खाली है। तो बच्चों, वो जो बीच में जगह होती है ना, वहाँ पर ग्रासेस लगा दी जाती हैं। सी व्हाट हैपन्स, हमने विंड इरोजन पढ़ा, जब खेत एकदम जगह खाली हो जाती है, हवा चलती है, सैंड लूज हो जाती है और वो विंड क्या करती है, उस सैंड को उड़ा के ले जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, वो क्रॉप्स के बीच में जो जगह है, ग्रासेस आर प्लांटेड। अब ग्रास तो रहेगी वहाँ, क्रॉप तो आपने हार्वेस्ट कर लिया, ख़त्म, निकाल लिया पूरा, लेकिन जो ग्रासेस हैं दे आर स्टिल देयर, दे होल्ड द सैंड, दे होल्ड द सॉइल, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं ताकि विंड इरोजन ना हो। In this method, cover crops such as grasses and small grains are planted alternatively with cultivated crops. एक लाइन क्रॉप्स की, एक लाइन ग्रास की, इस तरह से। These cover crops absorb the moisture and hold the surface soil together. वो उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब विंड चलती है, क्रॉप कटने के बाद, स्पेशली इन समर सीजन, तो उस समय वो ग्रासेस उस सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। दिस इज strip cropping. The next one is plugging of gullies. हाँ, खुदाई की जाती है, जैसे कैनाल्स बना दी जाती हैं, that is plugging of gullies. This is done by building stone dams or fixing wire netting or planting trees across gullies. वो जो क्यारियाँ हैं, वो है ना, उनके आसपास ट्रीज प्लांट किए जाते हैं या फिर उनमें नेट जैसा बताया है, वायर नेटिंग लगा दी जाती है। These measures check the flood water. वो क्या, पानी को बहने से रोकते हैं, वरना what happen when flood comes, सारा पानी आता है भरकर और फिर जब उतरता है तो सारा पानी बह जाता है।
जो गलीज, जो छोटी छोटी कैनाल टाइप हैं, वो खोद दी जाती हैं प्लांट्स के उसमें, ताकि वो वाटर को होल्ड करके रखें. एंड सो कॉज फिलिंग ऑफ सिल्ट इन द गलीज. वो पानी को होल्ड करके रखती हैं, छोटी क्यारियों के पास बना दी जाती हैं ताकि वो मॉइस्चर या वाटर को होल्ड करके रखें. दिस इज प्लगिंग ऑफ गलीज. नेक्स्ट मेथड इज प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स. क्या लगा दी जाती हैं? शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स होते हैं प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. This measure is adopted in the case of wind erosion. Again, this is for wind erosion. What happens? खेत में से जब क्रॉप कट गया, विंड लूज हो गई, सॉइल लूज हो गई, और जब विंड आती है तो वो उस सॉइल को उड़ा के ले जाती है. लेकिन अगर खेत के चारों तरफ बड़े ट्रीज प्लांट कर दिए जाएं लाइन से, तो वो उस विंड के फोर्स को रोकते हैं. वो विंड को उतनी तेजी से ब्लो नहीं होने देते. पेड़ होगा ना बड़ा, तो हवा के बहाव को रोकेगा, जिससे विंड इरोजन कम होता है. सो दिस मेजर इज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ विंड इरोजन. बेल्ट्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स आर प्लांटेड. चारों तरफ, खेत के चारों तरफ लाइन से लगा दिए जाते हैं. टू चेक द वेलोसिटी ऑफ द विंड, द स्पीड ऑफ द विंड, एंड दिस स्टॉप्स सॉइल मूवमेंट. और ये सॉइल के मूवमेंट को रोकता है. तो आज वी आर रीडिंग अबाउट सॉइल कंजर्वेशन. हमने अभी तक कितने मेथड्स पढ़ लिए? 5 मेथड्स पढ़े. द फर्स्ट वन वॉज कॉन्टूर प्लॉइंग, सेकेंड टेरेस फार्मिंग, थर्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, फोर्थ प्लगिंग ऑफ गलीज, एंड फिफ्थ प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स. तो रिमेनिंग विल डू इन नेक्स्ट क्लास. इन गो थ्रू दीज स्टेप्स. ध्यान से इनको पढ़ो, समझ में आएगा आपको कैसे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन होगा देन ओनली हमारी फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी. क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो फूड ग्रो नहीं होगा, हमें कपड़े नहीं मिलेंगे, वी वोंट हैव फाइबर टू मेक क्लोथ्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सॉइल कंजर्वेशन. एंड few methods we have read today, and few methods we'll discuss in next class. Till then, keep reading.